آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ہندوستان کی 4 ریاستوں مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلا، آسام اور پڈوچیری میں انتخابات کا شیڈول جاری۔ انتخابات کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا، نتائج 4 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ پکوان گیس کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت انتباہ، ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کا بیان۔ ایگل ٹیم کا سابق BRS رکن اسمبلی کے فارم ہاؤس پر چھاپا، کوکین اور ایک پستول برآمد، 10 افراد حراست میں۔ TDP کے رکن پارلیمنٹ بھی موجود تھے پارٹی میں۔ KYC اپ ڈیٹ یا ایمرجنسی گیس بکنگ کے نام پر دھوکہ، عوام سے چوکس رہنے کمشنر پولیس حیدرآباد کی اپیل۔ آندھرا پردیش میں بائیک کے دھوئیں سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت، دادا اور 3 پوتے پوتیاں دم گھٹنے سے ہلاک۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اتوار کو ملک کی 4 ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس کے مطابق انتخابات کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا، جبکہ تمام ریاستوں اور علاقے کے نتائج 4 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے نئی دہلی کے وگیان بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اس شیڈول کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ انتخابات مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلا، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں منعقد ہوں گے۔ شیڈول کے مطابق آسام، کیرلا اور پڈوچیری میں ایک ہی مرحلے میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ تمل ناڈو میں 23 اپریل کو ایک مرحلے میں پولنگ ہوگی۔ مغربی بنگال میں 2 مرحلوں میں ووٹنگ کرائی جائے گی، جس کے تحت 23 اپریل اور 29 اپریل کو رائے دہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ان تمام ریاستوں اور علاقے میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ایک ساتھ کی جائے گی۔ As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no eligible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with
lakhs of election officials and security personnel is committed. गैस कनेक्शन, केवाईसी अपडेट और इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर होने वाले नए साइबर फ्रॉड से आवाम को मुहतात रहने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने खबरदार किया है कि साइबर मुजरिम गैस सिलेंडरों के खिल्लत का फ़ायदा उठाते हुए मासूम शहरियों के बैंक अकाउंट से रकम लूट रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए आने वाले नामालूम लिंक्स पर क्लिक करना और धोखेबाजों की भेजी हुई APK फाइलें मोबाइल में इंस्टॉल करना इंतहाई ख़तरनाक है। बज़ाहिर एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल कंट्रोल साइबर मुजरिमों के हाथ में चला जाता है। उसके बाद मोबाइल पर आने वाले बैंक OTP और खुफिया पैगामात बराह रास्त मुजरिमों तक पहुंच जाते हैं। कमिश्नर पुलिस ने हाल ही में महाराष्ट्र के डोंबिवली में पेश आए एक वाक़े की मिसाल देते हुए बताया कि साइबर मुजरिमों ने ख़ुद को एक मारूफ गैस कंपनी के नुमाइंदे ज़ाहिर करते हुए 2 ख़वातीन को फ़ोन किया। उन्होंने गैस कनेक्शन की तफसीलात और KYC फौरी अपडेट करने का बहाना बनाकर व्हाट्सएप पर एक APK फ़ाइल भेजी और इसे डाउनलोड करके फॉर्म भरने को कहा। ख़वातीन ने जैसे ही ऐप इंस्टॉल करके अपनी मालूमात दर्ज की, उनके बैंक अकाउंट से तकरीबन 4 लाख रुपए गायब हो गए। उन्होंने आवाम को ख़बरदार किया कि फ़ौरी गैस सिलेंडर डिलीवरी या इजाफी सिलेंडर फराहम करने के दावों पर मुबनी सोशल मीडिया के झूठे इश्तिहारात पर यकीन न करें। अगर किसी पैगाम में गैस डिलीवरी के लिए पेशगी रकम तलब की जाए तो इसे साइबर फ्रॉड समझें। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है, ताहम कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई में कुछ मामूली मुश्किलात होने का उन्होंने एतराफ़ किया। आज उत्तम कुमार रेड्डी ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और तेल कंपनियों के नुमाइंदों का इजलास तलब करते हुए रियासत में LPG सिलेंडर्स की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि रियासत में घरेलू गैस सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है और आवाम को घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। रियासत में हर माह तकरीबन 58 से 60 लाख घरेलू गैस सिलेंडर्स फराहम किए जाते हैं, जबकि रोज़ाना तकरीबन 2.5 लाख सिलेंडर्स सप्लाई किए जा रहे हैं। आवाम बेचैनी के बायस गुज़िश्ता चंद दिनों से गैस बुकिंग दुगनी हो गई है, ताहम घरेलू सिलेंडर्स की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में इस वक्त जुमला 811 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं और रियासत भर में तकरीबन 1,13,00,000 गैस कनेक्शन मौजूद हैं। इनमें से 11 लाख कनेक्शन उज्ज्वल स्कीम और 28 लाख कनेक्शन दीपम स्कीम के तहत फराहम किए गए हैं, जबकि तकरीबन 7.5 लाख कमर्शियल कनेक्शन भी मौजूद हैं। वज़ीर मौसूफ ने एतराफ़ किया कि रियासत में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की फराहमी में कुछ मुश्किलात हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासती हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत के पास आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, मगर मुसानदी की खूबसूरती के नाम पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात की जा रही है। KCR तेलंगाना की तरक्की और तामीर की बात करते थे, वही कांग्रेस की हुकूमत तबाही की सियासत कर रही है। आज KTR ने पावर पॉइंट बमुकाबला
पब्लिक पॉइंट के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में कांग्रेस हुकूमत ने ही मूसा नदी को आलूदा नाले में तब्दील किया था। कांग्रेस हुकूमत अपने माजी की गलतियों पर पहले आवाम से मुआज़रत ख्वाही करें। KTR ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में मूसा नदी को साफ करने और उसे दोबारा बहाल करने के लिए इक़दाम किए गए थे। चंद इदारों की जानिब से मूसा नदी के अतराफ चंद मकानात को मुनद्दिम करने की तजवीज़ दी थी, मगर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR ने वाज़े किया था कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आवाम के मकानात को नुकसान पहुँचाए बगैर मनसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने बताया कि उस वक्त 5 किलोमीटर के एक प्रोजेक्ट पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया था और एक भी घर मुनद्दिम नहीं किया गया, मगर कल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जो पावर पॉइंट पेश किया है जिससे मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ रहने वाले अवाम में डर व खौफ पैदा हो गया है। రోజు 1591 అంటే 430-440 సంవత్సరాల కిందట మరి నగరం పుట్టింది. తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే ఆ రోజు మధ్యలో మూసీకి వచ్చిన అతిపెద్ద వరద ఎప్పుడంటే 1908. ఆ రోజుల్లో 1908లో పెద్ద వరదలు వచ్చినాయి. అప్పుడు హిమాయత్ సాగర్ లేదు, ఉస్మాన్ సాగర్ లేదు. ఇంతకుముందు సోదరుడు ఆంజనేయులు చెప్పిండు ఏమని, ఈ చెరువు కట్టినప్పుడు ఈ రిజర్వాయర్ కట్టినప్పుడు మా వాళ్ళు మా వడ్డెర కులస్తులు వచ్చి బండు కట్టినరు, మొత్తం కట్ట కట్టినరు అని చెప్పిండు. ఆ రోజు 1908లో నిజాం నవాబు మూసీకి వరదలు వస్తే ప్రజలు ఇబ్బందుల పాలైతే మరి పైకెళ్ళి వచ్చే నది నీళ్ళు ఎట్లా ఆపాలే అని ఆలోచన చేసి హైదరాబాద్ నగరం కొట్టుకపోవద్దు ఈ నది వరదలు అని చెప్పి ఈ 2 జంట జలాశయాలు, అటు ఉస్మాన్ సాగర్ ఇటు హిమాయత్ సాగర్, దాన్ని గండిపేట అంటాం, ఇది హిమాయత్ సాగర్, ఈ 2 చెరువులు కలిపి ఆ రోజు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు అనే పెద్ద మనిషిని పిలిచి, బెంగళూరులో ఉంటే కర్ణాటకలో ఉంటే వారిని పిలిచి ఆహ్వానించి డిజైన్ చేసి ఈ 2 రిజర్వాయర్లు నిర్మాణం చేసినారు. ఈ 2 రిజర్వాయర్ల యొక్క ఉద్దేశం 2 బృహత్తరమైన లక్ష్యాలు. 2 రిజర్వాయర్లకి ఒకటి, మళ్ళీ హైదరాబాద్కు వరద ముప్పు రావద్దు అంటే వీటిని బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల మాదిరిగా వచ్చే వరద నీటిని నిలిపి అవసరమైతే గేట్లు పెట్టి సందర్భానుసారంగా అవసరమైన కొద్దీ ఎంత విడుదల చేయాలో నీళ్లు గంతనే విడుదల చేసేందుకు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల మాదిరిగా ఈ 2 రిజర్వాయర్లను కట్టడం జరిగింది. ఒకటి. రెండవది, మంచినీటి అవసరాలు కూడా ఉంటాయి కదా నగరం పెరిగిన కొద్దీ, కాబట్టి వీటి నుంచి మంచినీళ్ళ అవసరాలు కూడా వాడుకోవాలని చెప్పి ఈ 2 జంట జలాశయాలు ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఆనాడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు వచ్చి డిజైన్ చేసి 1908 వరదల తర్వాత డిజైన్ చేస్తే 1920లో నిర్మాణం పూర్తయ్యి హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ 2 ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను మీకు, ఈ 2 కంబైన్డ్ కెపాసిటీ 7.5 TMCలు. ఒక TMC నీళ్లు అంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ ట్యాంక్ బండ్ చూసే ఉంటారు, హుస్సేన్ సాగర్ చూసే ఉంటారు, మన హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్, దాని కెపాసిటీ भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने इतवार को तेलंगाना हुकूमत के मुजवज़ा मूसा नदी की बहाली मंसूबे पर BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव की तनखीद का सख्त जवाब दिया है। वीडियो बयान में MP ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 13 मार्च को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए मूसा नदी की बहाली मंसूबे के हक़ाइक़ वाज़े तौर पर पेश किए। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा न सिर्फ निकासी आब को साफ करके बाहर निकालने बल्कि दरियाए गोदावरी का पानी मूसी में मुंतकिल करके नदी को बहाल करने का मकसद रखता है। सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला मूसी को साबरमती और गंगा रिवर फ्रंट तरक्याती मंसूबों की तरफ पर बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने नोट किया कि गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट की तरक्की के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KTR ने वज़ीर आला की प्रेजेंटेशन के 24 घंटों के अंदर गुमराहकुन बयानात दिए और झूठा प्रोपेगेंडा भी फैलाया, क्योंकि मूसी मंसूबा जो BRS हुकूमत के दौरान नाफिज नहीं हुआ था, अब कांग्रेस हुकूमत उसे आगे बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनामिया के पगनूर शहर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां बाइक के धुएं की वजह से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में दादा, एक पोता और 2 पोतियां शामिल हैं। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक बेंगलुरु के
त्यागराजू स्ट्रीट के रहायशी मुरली और रेवती मियाँ बीवी हैं। मुरली के वालिद रामचंद्रैया, बेटा कार्तिक और जुड़वां बेटियां चरपीत और चंदना भी इसी घर में रहते थे। बताया जाता है कि मुरली ने हफ्ते के रोज अपने मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास दी थी। इंजन में मसला होने की वजह से मैकेनिक ने इसे बोर करवाया और बाइक घर ले जाने के बाद रात भर स्टार्ट हालत में रखने का मशवरा दिया। इसी वजह से मुरली ने रात को घर के दरवाजे बंद करके बाइक का इंजन ऑन रखा। बाइक से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने पर 4 अफराद हलाक हो गए। रात के वक्त रामचंद्रैया अपने पोते कार्तिक और युवती चरितिक और चंदना के साथ नीचे वाले कमरे में सो रहा था, जबकि मुरली और युवती ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। बाइक से निकलने वाला धुआं घर में फैल गया, जिससे नीचे सो रहे चारों अफराद का दम घुट गया और वो मौके पर ही हलाक हो गए। ऊपर कमरे में सोने की वजह से मुरली और युवती की जान बच गई। 3 बच्चों और दादा की अचानक मौत से ख़ानदान में कोहराम मच गया और वालिदैन गम से निढाल देखे गए, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। त्यागराज వీధిలో మురళి తండ్రి పేరు రామచంద్ర అనే వ్యక్తి 40 సంవత్సరాలు. ఇతను బార్బర్ షాప్ పెట్టుకుని జీవిస్తూ ఉంటాడు. నిన్న సాయంత్రం తన హీరో హోండా మోటార్ సైకిల్ ఇంజిన్ బోర్ చేపించి మెకానిక్ ఏం చెప్పాడంటే, ఈ ఇంజిన్ బోర్ చేయించాను కాబట్టి తెల్లవారులు ఆన్లో ఉండాలని చెప్పగా అతను అది బండి తీసుకొని వచ్చి తన ఇంట్లో పెట్టి బండిని ఆన్ చేసి తన ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న రామచంద్ర మరియు 2 పిల్లలు కవల పిల్లలు మరియు తన కొడుకు ముగ్గురిని కింద పనిపెట్టి వీళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు పైన పనుకుంటారు. వీళ్ళు ఈ రామచంద్ర వాళ్ళు లోపల గడియేసుకుని పనుకుంటారు. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటలకు వచ్చి వాకిలు తీయమంటే తీయలేదు. లోపల చూస్తే వాళ్ళు చనిపోయి ఉంటారు. వెంటనే వాకిలు పలగొట్టి లోపల వెళ్ళి చూడగా 3 పిల్లలు వాళ్ళ నాయన రామచంద్ర 4 చనిపోయి ఉంటారు. దీనికి ముఖ్య కారణము కంటిన్యూ రాత్రి నుంచి ఈరోజు ఉదయం వరకు కూడా మోటార్ సైకిల్ రన్నింగ్లో ఉండడం వల్ల ఆ గాలి పీల్చి దానికి ఆ ఇంటికి ఎటువంటి కిటికీ లేకపోవడం వల్ల ఇల్లంతా పొగ వ్యాపించి దానివల్ల మరణించినట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం హాస్పిటల్ పంపబడుతుంది. తదుపరి విషయాలు కేసు విచారణ తెలుస్తాయి. तेलंगाना पुलिस की ईगल टीम ने साबिक बीआरएस के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर छापा मारा है। ये कार्रवाई हैदराबाद के मुजाफाती इलाके मोइनाबाद में रात देर गए जारी एक पार्टी के दौरान की गई। पुलिस ने कहा है कि छापे के दौरान तकरीबन 2 ग्राम कोकीन और एक पिस्तौल बरामद किया गया, जबकि 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर ने मुबैना तौर पर फायरिंग भी की थी। इस मौके पर मौजूद अफराद के मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक तिबी जांच के लिए इब्तदाई यूरिन टेस्ट भी किए गए। टेस्ट के नताइज के मुताबिक रोहित रेड्डी समेत 5 अफराद नमित मिश्रा, रितीश रेड्डी, कौशिक रवि और अर्जुन रेड्डी के टेस्ट मुस्बित पाए गए हैं। पार्टी में मौजूद दीगर अफराद में टीडीपी रुकन पार्लियामेंट पी महेश कुमार, एम रमेश, श्रवण कुमार, विजय कृष्णा और रवि शामिल थे। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। వెహికల్స్ ఫామ్ హౌస్ తీసుకుంటారు లోపల రామ్ కాదు సార్ మేము మీ నిద్ర వేస్ట్ అవుతుంది, మా నిద్ర వేస్ట్ అవుతుంది. बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर छापामार कार्रवाई और ड्रग्स की बरामदगी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कारकुनान ने आज बीआरएस पार्टी और केटीआर के खिलाफ एहतजाज किया। तेलंगाना में कांग्रेस लीडर और एमएलसी वेंकट बालमूर ने पार्टी कारकुनान के साथ एहतजाज करते हुए केटीआर का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनान नो ड्रग्स नो केटीआर के नारे लगा रहे थे। हाल मूर वेंकट ने केटीआर को मंशियात का टेस्ट करवाने का चैलेंज किया।
کامریڈی ٹاؤن سے گمشدہ 2 بچوں کی لاشیں ایک باولی میں پائی گئی۔ پولیس کے مطابق ان دونوں لڑکوں کی گمشدگی کے سلسلے میں 2 مارچ کو ایک شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کو کہا ہے کہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ 7 دنوں کے دوران بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جن کی رفتار 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہو سکتی ہیں۔ روزانہ موسمی رپورٹ میں محکمے نے بتایا کہ اس دوران ریاست کے مختلف مقامات پر ہلکی سی درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ آئندہ 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بتدریج 2 تا 4 ڈگری سیلسیس کی کمی متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں خشک موسم رہا۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ درجہ حرارت 39.3 ڈگری سیلسیس عادل آباد میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس بھی عادل آباد میں ہی ریکارڈ ہوا ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہندوستان کی 4 ریاستوں مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلا، آسام اور پڈوچیری میں انتخابات کا شیڈول جاری۔ انتخابات کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا، نتائج 4 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ پکوان گیس کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت انتباہ، ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کا بیان۔ ایگل ٹیم کا سابق BRS رکن اسمبلی کے فارم ہاؤس پر چھاپا، کوکین اور ایک پستول برآمد، 10 افراد حراست میں، TDP کے رکن پارلیمنٹ بھی موجود تھے پارٹی میں۔
KYC अपडेट या इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर धोखा, आवाम से चौकस रहने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की अपील। आंध्र प्रदेश में बाइक के धुएं से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत, दादा और 3 पोते पोतियां दम घुटने से हलाक। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।